Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic problem of poverty in India. This is the part of Unit 7 in your syllabus, right? So, problem of poverty. If I ask question from you, what is poverty? Then you might say, then when people are not able to meet their both ends, then we say then people have poverty, right? Poverty is what? So we will discuss basically the problem of poverty in India and the extent to which India is poor. India, maybe India is not poor, but its people are poor. So we will discuss in detail. We will also discuss the reasons behind the problem of poverty in India and suggestions, further suggestions to remove that poverty. It is not so that government is not doing some anything for eradication of poverty. Government is taking efforts for elevation of poverty. There are many poverty elevation programs which are run by the government, but still poverty had not been eradicated. So in this topic we will also discuss the critical analysis of the programs run by the government, right? So students, let us start with the introduction of the topic. Soon after the independence, जब इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई तो बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं. मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स हैं बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव ही ये रहा है कि हमें पावर्टी एलिवेशन करनी है. मतलब दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि हमें ऑलमोस्ट 70 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इंडिपेंडेंस हुए, बट स्टिल जो एक पावर्टी है वो हमारा एक बेसिक, अभी भी बेसिक इशू है. हर प्रोग्राम में पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है. केन्स के अकॉर्डिंग, केन सेज, डू नॉट आस्क मी व्हाट पावर्टी इज बिकॉज येट हैव यू हैव मेट इट आउटसाइड माई हाउस. आपने तो घर के बाहर ही पावर्टी देखी है. लुक एट माई हाउस and count the number of holes in it. Look at my utensils and the clothes I am wearing. Look at everything and write what you see. What you see is poverty, right? So, this is the meaning of poverty defined by Keynesian. So, according to World Development Report 2000 of World Bank, poverty is what? Poverty is the inability to attain a minimum standard of living. जब कोई बंदा एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, वो रिक्वायरमेंट उस बंदे की पूरी नहीं हो रही है, देन वी से दैट देयर इज़ पॉवर्टी. The incidence of poverty results in very poor quality of life for people. It inflicts severe suffering on the people. देखो पॉवर्टी का रिज़ल्ट क्या है कि पॉवर्टी से बहुत स्वेयर सफरिंग होती है लोगों को. एंड द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री हैज़ मैनी serious economic, social, political, and ethical implications. So, in a developing country like India, कहते हैं कि पावर्टी का तो एक विशिष्ट सर्कल चलता है. मैनी जनरेशन्स हैं जो उस सर्कल में ट्रैप हो चुकी हैं और उनके लिए तो पावर्टी बेटा एक कर्स बन चुका है, मतलब अभिशाप बन चुका है जो उनको उनके पूर्वज दे के जाते हैं, तो आगे वो भी अपने बच्चों को दे के जाते हैं. तो कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं, ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे पावर्टी एक अभिशाप बन चुका है, उनके लिए कर्स है. इट इज़ अ कर्स बाय द गॉड कि वो एक एक दिन अपनी किस्मत को कोसते हैं कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, राइट? सो वी विल डिस्कस द थिंग्स, द रीजंस बिहाइंड द पॉवर्टी. First of all, we should be clear about the definition of poverty. Students, there are two concepts of poverty. One is the absolute poverty and other is a relative poverty.
Absolute poverty refers to the incidence of poverty as compared to the predetermined specific level. Under this concept, people below the predetermined specific level are referred to be poor or in the state of poverty. गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक लेवल सेट करती है और उस स्पेसिफिक लेवल से अगर किसी की जो इनकम है कम है देन वी विल से दैट पर्सन इज पुअर. This technique of measuring poverty in terms of number of people below poverty line is also known as head count ratio. इसे हम head count ratio भी बोलते हैं कि कितने head count जो है हमारी poverty line से below है. तो ये स्पेसिफिक लेवल क्या होता है, ये एक पावर्टी लाइन है जो गवर्नमेंट सेट करती है. अगर कोई बंदा इस पावर्टी लाइन से अबव फॉल करेगा देन ही विल नॉट बी टर्म्ड एज पुअर. बट अगर वो पावर्टी लाइन से बिलो काउंट करता है, बिलो होता है, देन वी से कि जो ही और शी इज़ बिलो द पावर्टी लाइन. तो गवर्नमेंट ने अगर फाइंड आउट करना है कि मेजर करना है कि हमारी पावर्टी लाइन क्या है, देन वो हेड काउंट देखते हैं कि कितने लोग पावर्टी लाइन से बिलो हैं. सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ फिक्स्ड a per capita day minimum calorie intake requirement of 2400 calories in rural areas and 2100 calories in urban areas. कहते हैं कि इन इंडिया जो है ना, अगर हम बात करें कि वो पावर्टी लाइन कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि वो पावर्टी लाइन के नीचे है या ऊपर है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने ना कैलोरीज की लिमिट बनाई हुई है. अगर एक बंदा जो विलेज में रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है, अगर उसको 2400 कैलोरीज पर डे नहीं मिल रही हैं देन ही इज़ कॉल्ड एज पुअर. और अर्बन एरिया में अगर आपको 2100 कैलोरीज इन अ डे नहीं मिल रही है देन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज पुअर. ये जो लिमिट्स बनाई गई हैं बेटे, as per the report of the task force on projection of minimum need and effective consumption demand के reports के according set किए गए हैं. And this task force was constituted by Planning Commission in 1979 and it was headed by Mr. Y.K. Alaga. In accordance with these calories intake limit, a specific minimum limit of private consumption expenditure has been fixed and revised from time to time to determine the poverty line in India. ये जो पावर्टी लाइन की बेटी लिमिट है, कैलोरीज की लिमिट है, ये इसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है. 1973-74 में पर कैपिटा पर मंथ प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 49.63 was fixed as poverty line for rural areas and 56.64 per month poverty line expenditure was fixed for urban areas. कि अगर एक बंदे की एवरेज जो प्राइवेट कंजप्शन है 49.63 रुपीज़ पर month है then we will say कि that person is okay. But if it is below this amount then हम कहेंगे कि वो बंदा पावर्टी लाइन के बिलो है. ऐसे ही तेंदुलकर कमेटी ने भी बेटे अपनी रिकमेंडेशन दी हैं. तो हर एक कह लो कि डेकेड के बाद ये जो रिकमेंडेशंस हैं चेंज होती हैं और उसके अकॉर्डिंग पावर्टी लाइन डिसाइड की जाती है. अभी तक का जो लेटेस्ट फिनोमिना चल रहा है तो इन 2014 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बेटा लेटेस्ट है. In 2014 an expert committee under the chairmanship of C. Rangarajan जो प्रेजेंट गवर्नर थे has further revised these expenditure limit upward to rupees 972 in rural areas and rupees 1407 in urban areas for the year 2011-12. These limits were looked up by Rangarajan committee on the basis of the revised per capita per day calorie intake of 2155 calories in rural areas and 2090 calories in urban area. इसका मतलब क्या है बेटे कि अगर रूरल एरिया में एक दिन में एक बंदे की जो एक्सपेंडिचर है 972 पे है 972 रुपीज़ है और अर्बन एरिया में एक बंदे की 1407 रुपीज़ की
कंजप्शन है या एक्सपेंडिचर है ऑन प्राइवेट थिंग्स, देन हम बोलेंगे कि या इससे बिलो है कि दैट पर्सन इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा कैलोरीज की लिमिट भी सेट की गई है कि रूरल एरियाज़ में एक बंदे को कम से कम 2155 कैलोरीज चाहिए और अर्बन एरियाज़ में 2090 कैलोरीज चाहिए। बट अगर एक बंदे को इतनी कैलोरीज मिनिमम नहीं मिल पाती हैं, देन इट इज़ assumed that that person are below the poverty line. Now, relative poverty. Relative power concept क्या है? According to this concept, it refers to the incidence of poverty among different groups or classes of people, among different regions of a country, or among different countries of the world in comparison to one another. The class, group, region, or country which is economically worse off as comparison to some other class, group, region, or country is said to be in the state of poverty. So, the concept of relative power proves highly useful in comparative economic analysis at the national and international level. देखो, अगर एक कंट्री की जो फाइनेंशियल डाटा है उससे पता लगता है कि एक कंट्री की जो एवरेज वी में से इनकम है या मतलब जो उनका एवरेज इनकम है एक पर्टिकुलर रीजन या क्लास या ग्रुप से बिलो है, देन दैट कंट्री इज़ वर्स्ट इन वर्स्ट ऑफ पोजीशन। ठीक है, अगर जैसे हम एग्जांपल लें कि इंडिया की पॉवर्टी लाइन सेट की गई है, ठीक है, एवरेज बेसिस पे, अगर पंजाब के लोगों की जो इनकम उस पॉवर्टी लाइन से अबव है, देन वी से कि वो पॉवर्टी लाइन से अबव फॉल करते हैं। अगर वो एवरेज लाइन से बिलो हैं, देन इट इज़ अज्यूम कि वो पॉवर्टी लाइन पे के नीचे आ चुके हैं। क्लियर? So, Planning Commission data on the prevalence of poverty among different Indian states help to draw important conclusion about the relative poverty in Indian states. As per the latest available data, the incidence of poverty in 2011-12 in Bihar was 33.7%, in Assam 32%, in Odisha 32.6%, एंड इन पंजाब 8.3%, मतलब 8.3% लोग ही थे जो पुअर कंडीशन में थे। एंड दिस कंपेरेटिव एनालिसिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन वाई द फॉर्मर ग्रुप ऑफ स्टेट इज कंपेरेटिवली लेस ट्वेल्व एज कंपेरिजन टू द लेटर ग्रुप, राइट? So it also shows that there is widespread inter-regional variations in the incidence of poverty in Indian states. मतलब जो पावर्टी है उस पावर्टी का इम्पैक्ट अलग अलग एरियाज़ के ऊपर क्या पड़ रहा है। अगर देश पुअर है तो उसका इम्पैक्ट अलग अलग रीजन्स के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि रिलेटिवली यहाँ भी कितनी पुअर या पावर्टी है। ठीक है, जैसे हम पंजाब की डिस्कस करते हैं कि देश में अगर मान लो 1000 लोग पुअर हैं पूरे देश में, उसके 8.3% अब यहाँ पे कहाँ पे है? पंजाब में है, यानी कि ऑलमोस्ट 83 जो पीपल इन दे विल बी इन पंजाब, दैट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी लाइन, राइट? नाउ व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन है क्या? पॉवर्टी लाइन में बी डिफाइंड एज द कट ऑफ लेवल, वो एक लिमिट है। कट ऑफ लेवल क्या? एक लिमिट है with reference to which estimates of poverty are obtained in a country. Generally, in developed countries, poverty line is determined in terms of a specific income necessary to purchase a specific basket of goods. एक जो स्पेसिफिक गुड्स खरीदने के लिए जो स्पेसिफिक इनकम चाहिए, अगर वो बंदा नहीं जुटा पा रहा, देन हम कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। But in developing country, there is higher degree of variation in income of people. So developing country generally determine poverty line in terms of specific limit of consumption expenditure. तो क्योंकि इनकम की बहुत वेरिएशन होती है जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, तो वहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम को क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए। वहाँ पे हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। Suppose in a country any income or expenditure level of US $1000 per person per month is fixed as poverty line.
As the any person whose income or expenditure as a case may be is below $1,000 per month will be considered as poor or below poverty line in the state of poverty. Clear? Now we will discuss the poverty line in India. Right? बेटे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पावर्टी लाइन है वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के टर्म में मेजर करी जाती है एंड दिस एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इज़ डिटर्मिन सेपरेटली फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज नंबर 2. ठीक है, तो थर्ड थिंग इज़ कि पावर्टी लाइन जो है वो इस्टेब्लिश करी गई है ऑन द टर्म्स ऑफ मिनिमम स्पेसिफाइड लेवल ऑफ कैलोरीज इनटेक पर पर्सन पर डे. अगर हम प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशंस की बात करें तो रूरल एरियाज़ में कम से कम 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एक पर्सन को डेली एंड इन केस ऑफ अर्बन एरियाज 2100 कैलोरीज पर डे. अगर एक बंदे को इन कैलोरी लिमिट से बिलो उनकी कैलोरी की इनटेक है या उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा देन इट इज़ सेड दैट दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन. As per these level, monthly per capita private consumption expenditure as poverty line since 2011-12 is rupees 816 in rural areas and rupees 1000 in urban areas. In 2014 सिंह रंगाराजन कमेटी ने इनमें चेंजेस करे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी कि अगर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जो लिमिट है वो उस लिमिट से अबव है, जैसे कि वो फिक्स करी है कि वो 972 रुपीज़ इन रूरल एरियाज़ एंड रुपीज़ 1407 इन अर्बन एरियाज़. तो अगर तो आपका एक्सपेंडिचर की लिमिट जो है इस अमाउंट से अबव है देन दैट पर्सन इज़ अबव पॉवर्टी लाइन. बट अगर वो इतनी मिनिमम एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं देन इट इज़ सेड दैट पर्सन इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन. राइट. सो अगर हम सारी डिस्कशन को देखें बेटे बहुत सारे इश्यूज़ हैं पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग. एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो इनकम है वो वॉलेटाइल है, मतलब इनकम चेंज हो रही है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पैटर्न की इनकम है. राइट. तो उस केस में ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड करना एक बहुत बड़ा इशू है. सेकेंडली इनकम जो है इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द purchasing power, whereas consumption expenditure is based on the actual consumption of the goods. So it also means कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल है पॉवर्टी लाइन को सेट करना. क्या वो कैलोरीज लिमिट में फाइंड आउट करें, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करें, इनकम के बेसिस पे करें या कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे करें. तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो पॉवर्टी लाइन की डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. अगर अब हम पॉवर्टी लाइन के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करें कि इंडिया में क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट हो रही है. इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज़ डिटर्मिन in terms of private consumption expenditure necessary to have a specified level of intake of calories. पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करी जाती है, एक क्राइटेरिया क्या अडॉप्ट किया जाता है, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो एक बंदा कैलोरीज के ऊपर स्पेंडिंग कर रहा है उसके बेसिस पे भी पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट हो सकती है. द डाटा कंसर्निंग प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कंडक्ट कराता है, जिससे हमने ये डाटा मिल सकता है कि जो लोग हैं उनका प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है. अ सेपरेट पॉवर्टी लाइन इज़ फिक्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़. अलग अलग लोगों के लिए, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी लिमिट्स बनाई हैं. प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन बोथ फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स इज कंसिडर्ड. So the quantities of various consumption item needed to obtain the requisite calories are determined. These are then multiplied with respective prices to obtain the minimum requisite private consumption expenditure. And several revisions have been made in poverty line from time to time. अलग अलग टाइम में अलग अलग लिमिट्स बनाई गई हैं. So in India, poverty in recent time has been estimated as per the रिकमेंडेशंस ऑफ द रंगाराजन कमेटी. तो रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने
प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट सेट करी है कि अगर उस कंजप्शन लिमिट से बिलो किसी की इनकम है देन दैट पर्सन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन. So the serious most flaw of this methodology of determining the poverty line in India is that it lays emphasis on the minimum level of living rather than a reasonable level of living. एक बंदे के लिए जो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग है वो किसी और पर्सन के लिए लग्जोरियस हो सकती है. तो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग इनकम क्लास के लिए बेटर डिफरेंट होती है. तो हम एक इनकम को मतलब प्राइवेट कंजप्शन को क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं किसी बंदे की पावर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए. इंडिया में जो बड़ी पावर्टी है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई है. कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जो क्रोनिकली पुअर हैं. इसमें वो सारे कैजुअल लेबरर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स आते हैं हु आर इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी. क्रोनिकली पुअर पोजीशन है. सेकेंड कैटेगरी में ट्रांजिट पुअर आते हैं हु मूव इन एंड आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द पॉवर्टी. जो मूव इन करते हैं बेटे, मतलब जो अगर पुअर है तो उसमें उसको भगवान की देन मान के नहीं बैठते, वो उससे लड़ने की मतलब उसके लिए स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, जैसे कि सीजनल लेबर है. अब उस कैजुअल लेबर है वो उन्होंने एक ही काम करना है सारा साल, वो और कोई काम में अपना किस्मत नहीं आजमाते. बट जो सीजनल लेबर है अलग अलग सीज़न में अलग अलग काम करते हैं ताकि अपनी जो पावर्टी की प्रॉब्लम है उससे अपने आप को बाहर निकालने के लिए वो कभी कभी ज़रूरत पड़े तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जाते हैं और अलग अलग वर्कर्स को भी जॉब पे रखते हैं. थर्ड कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं हु आर ओनली दे आर नेवर पुअर एंड हु आर नेवर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. ये कभी भी पुअर नहीं है, कभी भी ये पॉवर्टी की स्टेट में नहीं आते हैं. ठीक है, तो ये तीन तरह की तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्टी लाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए. देर विल बी पीपल हु आर क्रोनिक पुअर, देर विल बी ट्रांजिट पुअर एंड देर इज़ नेवर पुअर कैटेगरी ऑल्सो. राइट.